हेलो माय डियर स्टूडेंट। वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपको केन्सियन थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप बताने जा रही हूँ। वीडियो के इसके पूर्व पार्ट्स में हमने जो इन्फ्लेशन का चैप्टर लिया था, इसमें हमने आपको क्लियर कर दिया था व्हाट इज़ इन्फ्लेशन एंड व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इसके अंतर्गत वीडियो के इस पार्ट के अंतर्गत आपको ये देखना है कि प्रोफेसर किन्स ने अपनी विचारधारा के अनुसार मुद्रास्फीति को कैसे एक्सप्लेन किया है। प्रोफेसर किन्स का ये मानना है कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है वो एक्चुअल में तब उत्पन्न होती है जब हमारी अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार बिंदु को प्राप्त कर लेती है। प्रोफेसर किन्स का ये मानना है कि इन्फ्लेशन तभी अर्थव्यवस्था में आएगा जब हमारी अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार बिंदु पे पहुंच जाएगी। अकॉर्डिंग टू द किन्सियन, रियल इन्फ्लेशन comes into being only if monetary expansion continues even beyond the point of full employment. Then every additional expansion of money supply shall extract its full effect on prices, rising them to higher and higher levels. किन्स ने अपनी इसी फिनोमिना के आधार पर मुद्रास्फीति को एक्सप्लेन किया है या अपनी विचारधारा को हम सबके समक्ष व्यक्त किया है। The Keynesian concept of inflationary gap represent the technique of statistically measuring the pressure of inflation in the economy. The inflationary gap for the economy as a whole may be defined as an excess of anticipated expenditure over available output at basic price. The anticipated total expenditure referred to in the above concept depends upon the net disposable income of the community. The net disposable income of the community in its own turn is arrived at by subtracting taxation and saving out of the total money income. Net disposable income is equal to total money income taxation minus saving. That means anticipated total expenditure of the community is determined by the aggregate consumption, investment and government outlay. जो हमारा टोटल एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर होगा दैट विल इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसको इक्वेशन के माध्यम से आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। सी इज फॉर कंजम्पशन, आई इज फॉर इन्वेस्टमेंट and G is for government expenditure. The real output, on the other hand, is determined by the condition of employment plus the technological basis of the economy. The inflationary gap is a situation where the anticipated expenditure, that means C plus I plus G, or the demand for output exceeds the available output at pre-inflation prices. It is measured by the difference between the net disposable income
on the one hand and the available output on the other. एक साइड हम नेट डिस्पोजेबल इनकम देखेंगे और दूसरी तरफ नेट अवेलेबल आउटपुट, जितना हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, इनके लिए कितनी डिमांड है मार्केट में, इस आधार पर इसका निर्धारण किया जाएगा. द इन्फ्लेशनरी गैप may develop in the economy like this. To start with, there is an increase either in private investment or in the government outlays. This has the result of raising the money income of the community to higher level. इनकी वजह से समाज में मनी इनकम, कम्युनिटी की मनी इनकम बढ़ती है. But the real output of goods and services does not increase because the economy is already operating at the point of full employment. लगातार बढ़ती हुई जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए आउटपुट तैयार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज पर पहुंच चुकी है. The failure of the economy to raise its output in response to the increase in the money income result in the emergence of the inflationary gap. The inflationary gap is thus the result of excess demand in the economy. That means अगर economy में excess demand होती है आफ्टर द स्टेज ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, उस स्थिति में इन्फ्लेशनरी गैप उत्पन्न होता है. इन अदर वर्ड्स, द इन्फ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू नेट डिस्पोजेबल इनकम माइनस रियल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब देखिए, इतना जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, इन्फ्लेशनरी गैप जो है ये क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे. देखिए, इसमें आप दो कॉलम बना लीजिए, एक तो डिमांड साइड का है और दूसरा जो है वो सप्लाई साइड का है. अब डिमांड साइड में देखिए, टोटल मनी इनकम जो है वो हमारी 300 है, माइनस टैक्सेस 50 crores. Total disposable income 250 crores minus saving 50. Net disposable income is 200. That means हमारी इनकम जो है, डिस्पोजेबल इनकम जो है, दैट इज 200 crores. अब इस साइड हम देखते हैं, सप्लाई साइड में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट इन्फ्लेशनरी प्राइस 270. Next, minus war expenditure, this is 90. Available output for consumption is 180 at pre-inflation prices. Now, hence inflationary gap कैसे आप निकालेंगे, इज इक्वल टू 200 माइनस 180 इक्वल टू ₹20. 200 माइनस 180 इक्वल टू 20 crores. ये जो 20 crores आपने प्राप्त किया, दिस इज इन्फ्लेशनरी गैप. दिस इज ड्यू टू द इन्फ्लेशनरी गैप. आप इसको नोट कर सकते हैं, ये जो टेबल हम यहाँ पे दे रहे हैं इसको आप नोट कर लीजिए. I hope you have copied it.
तो ये जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है, ये द अबव टेबल, दिस टेबल रिलेट्स टू द वॉर टाइम इकोनॉमी। जो हमारी युद्ध काल में की जो स्थिति होती है, युद्ध काल की जो इकोनॉमी होती है, उस स्थिति में ये स्थिति ज़्यादातर देखने को मिलती है। देयर इज़ अ क्लियर इन्फ्लेशनरी गैप ऑफ ₹20 करोड़ इन द इकोनॉमी। अभी हमने आप देखा। सो लॉन्ग as this inflationary gap continues to exist, the price level shall go on rising towards. But if somehow this inflationary gap of ₹20 crore is wiped out, किसी तरीके से वाइप हो जाता है, there shall be no inflation at all. अगर हमारी डिमांड को पूरा करने के लिए किसी भी तरीके से सप्लाई जो है अवेलेबल है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो सकती हैं या हमारे पास अवेलेबल है, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस अ पार्ट ऑफ दिस इन्फ्लेशनरी गैप। सरकार यदि चाहे तो कुछ पार्ट इन्फ्लेशनरी गैप का कम कर सकती है बाय कटिंग डाउन डिस्पोजेबल इनकम थ्रू टैक्सेस। टैक्स लगा के जनता की वो जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको कम कर सकती है। द होल ऑफ द गैप कैन नॉट बी वाइप्ड आउट थ्रू इन्फ्लेशन। लेकिन पूरा जो अंतर है, पूरा जो गैप है, इसको केवल इन्फ्लेशन से कम नहीं किया जा सकता, बिकॉज इन दैट केस देयर इज बाउंड टू बी टैक्स रेजिस्टेंस एंड पॉपुलर अनरेस्ट। यदि टैक्स की मात्रा सरकार बढ़ा देगी तो ऑब्वियस सी बात है, जनता में बहुत असंतुष्टि का वातावरण, हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ही असंतुष्टि का वातावरण बन सकता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू रिमूव द इन्फ्लेशनरी गैप थ्रू टैक्सेस as well as induced saving. इन्फ्लेशनरी गैप को कम करने के लिए एक तरफ तो हमें टैक्सेस को थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहिए और अपनी सेविंग्स को हमें जनरेट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। Yet another way to reduce or narrow down the inflationary gap is to increase the supply of consumer goods। या हमें कंज्यूमर गुड्स की सप्लाई को बढ़ाना चाहिए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। लेकिन इन वॉर टाइम, युद्ध के समय, द स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स फॉर सिविलियंस इज रादर लिमिटेड। युद्ध काल में हम ऐसा करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। सो द ओनली मेथड अवेलेबल फॉर नैरोइंग डाउन द इन्फ्लेशनरी गैप ड्यूरिंग वॉर टाइम आर टैक्सेस एंड पब्लिक बोरोइंग्स। अब देखिए, इसी इन्फ्लेशनरी गैप को, ये जो अभी हमने आपको इन्फ्लेशनरी गैप एक्सप्लेन किया है, इसी इन्फ्लेशनरी गैप को हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। ये एक एक्सिस पे OY एक्सिस पे हमने टोटल एक्सपेंडिचर दिखाया है, दैट इज C+I+G, और दूसरे OX एक्सिस पे हमने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को दिखाया है। ये देखिए, इस तरीके से आप डायग्राम अपना बना सकते हैं। आई होप you have noted down the diagram. The concept of inflationary gap
can also be illustrated by means of the diagram which is shown here. The total anticipated expenditure of the economy is indicated by the C plus I plus G function. That means on O and Y axis. The 45-degree line OE is the equilibrium line indicating that the economy is in equilibrium when the output of goods and services as represented by the GNP equals the demand for them. इस बिंदु पे मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं. The C plus I plus G, this one, curves intersect the line OE at the point N. OE at the point N1. This gives us the equilibrium income indicated by OY1. This one. OY1. This represents the full employment income at the pre-inflation price. The aggregate monetary demand here is shown by the C plus I plus G curve, which is equal to, which is equal to N1Y1, N1Y1, N1Y1. This N1Y1 is equivalent to the total output of goods and services amounting to OY1. Since the total money income is equal to the total available output, there is no equation of any excess demand. Hence, there is no possibility of emergence of an inflationary